आपने اس لیے بلایا کہ کل آپ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا رامبن میں بہت بڑا حادثہ ہوا جس میں کئی جانے گئی. ابھی کئی لوگ جو ہیں لاپتہ ہیں, ہمیں معلوم نہیں ہے. بہت سارے گاڑیاں دب گئی ہیں, ملبے کے نیچے ہیں, ہوٹل ملبے کے نیچے ہے, اور اس وقت سڑک بند ہے جس کی وجہ سے وہاں بہت سارے جو پیسنجر ہے, بچے ہیں, عورتیں ہیں, بوڑھے ہیں, بہت ہی مشکل حالات میں ہیں. تو اس کا ایک وجہ جو مجھے نظر آتی ہے, ایک تو اوپر والے کی وجہ سے ہے, مگر کہیں نہ کہیں جو ہم یہ پہاڑوں کی چیر پھاڑ کرتے ہیں, جنگلوں کو بے تحاشا کاٹتے ہیں, اس کو بنا سوچے سمجھے جو ہم واتاورن کے ساتھ اس کا ایک حساب سے سوچے کہ تباہی مچاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی یہ لینڈ سلائڈز وغیرہ آ رہی ہیں. اور دن بہ دن جو ہے جو ہم پورا اس کے کہتے ہیں نا پرگتی کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں, تو وہ واپسی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اور اس میں بڑا نقصان ہو گیا ہمارا. کل کچھ دن پہلے وہاں کئی لوگ جو ہیں ان کی جانیں چلی گئیں, اور کئی ابھی میرے خیال میں شاید ملبے کے نیچے ہیں, گاڑیاں ملبے کے نیچے ہیں. تو میری گزارش ہے سرکار سے, ایک تو جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں لوگ سڑک پہ, اس کا ایک تو ملبہ بڑی جلدی جلدی ہٹایا جانا چاہیے, تاکہ ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے, اوپر والا چاہے, کوئی جان بچ بھی سکے. اور دوسرا جو وہاں بچے ہیں, عورتیں ہیں, بزرگ ہیں یا جوان بھی ہیں, تو ان کے تب تک بچاؤ کا, کھانے پینے کا جو ہے ارینجمنٹ کیا جائے. اور میں نے اپنے ہمارے پارٹی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں جو اسی ایریا کے ہیں, امتیاز شان, اس کو بھی میں نے بتایا کہ اپنی ٹیم لے کے جائے, کیونکہ ابھی تو وہاں روڈ بند تھا اس گاؤں کی طرف. میں نے کہا وہاں جا کے جو بھی ہو سکتا ہے مدد وہ کرنی چاہیے. تو دوسرا, جیسے ابھی کچھ دن پہلے یہاں جموں میں بھی طوفان آیا تھا, ژالہ باری ہوئی, یہاں بھی میرے خیال میں جو ہمارے جو باسمتی ہے, جو ہمارے آم کے پیڑ وغیرہ ہے, اس پہ بڑا نقصان ہوا, بہت نقصان ہوا. اور کشمیر میں بھی حال ہی میں بہت ہی زیادہ ژالہ باری ہوئی, اور خاص کر جو کشمیر کا سیب ہے اور جو بادام کی اس وقت وہ پھول لگے ہوئے تھے, اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے. اور جیسے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر کی ریڑھ کی ہڈی ہے ہارٹی کلچر, تو اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے. جب میں نے دیکھا وہ جس طرح وہ پھول سارے زمین پہ پڑے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے, جس میں سیب کے وہ پھول تھے, بادام کے وہ پھول تھے, تو کہیں نہ کہیں دل دہل جاتا ہے اس کو دیکھے. تو اس میں سمجھتی ہوں کہ سرکار کو ہر جگہ ٹیمز بھیج کے دیکھنا چاہیے کہ کتنا نقصان کی ہم بھرپائی کر سکتے ہیں, کتنا ہم آگے چل کے کسانوں کو, چاہے وہ جموں میں ہے چاہے کشمیر میں ہے, کہ ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں. ان کو جو دوائیاں ہیں, کھاد ہیں, کیا وہ ہم کم سے کم قیمت پہ ان کو دے سکتے ہیں, تاکہ ان کا جو بوجھ ابھی ہے, جو اس سے نقصان ہو گیا, کہیں نہ کہیں اس کی بھرپائی ہو جائے, اور کچھ کمپنسیشن کے طور سے بھی ان کو دیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو ایم ایل ایز ہیں اسمبلی میں, بہت ہی آج بھی میرے خیال میں کہیں دھرنا چل رہا ہے ڈیلی ویجرز کا. تو ہمارے اسمبلی ممبرز نے 3 بہت ہی اہم بل لائے تھے, جس میں ایک تو ڈیلی ویجرز کو ریگولرائز کرنے کا, جس میں میرے وقت میں کافی پیش رفت ہوا تھا. ہم نے بایو میٹرک سب کا کرایا تھا, اور اس کے بعد 520 ہم نے لایا تھا, اس میں ایک SRO کہ ان کو ریگولرائز کرنے کا, پر چونکہ سرکار ساتھی میں گر گئی اور وہ نہیں کر سکے, تو اب ہم نے بل لایا جس کو گورنر صاحب نے اوکے بھی کیا, مگر بدقسمتی سے سرکار نے اس کو اسمبلی میں لانے نہیں دیا. بڑا شور شرابہ, ڈرامہ ڈروما چلتا رہا. تو میری سرکار سے گزارش ہے کہ آپ ان ڈیلی ویجرز کو جلد سے جلد ریگولرائز کر سکیں, کیونکہ جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں, PHE ہو, R&B ہو, پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو, اریگیشن ہو, ہیلتھ ہو, R&B ہو, جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ڈیلی ویجرز کے بلبوتے پہ چلتے ہیں, اور یہ بیچارے جو ہیں فاقہ کشی کی حالت میں زندہ ہیں. اب 20 25 سال سے یہ کام کرے, ان کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں, تو ان کو جلد سے جلد ریگولرائز کیا جائے. دوسرا ہم نے بل لایا تھا کہ آپ کو پتہ ہے پورے ملک میں اس وقت بلڈوزر کا بڑا فیشن چلا ہوا ہے, اور یہاں بھی وہ شروعات ہو گئی تھی.
मगर किसी वजह से थोड़ा बहुत रुक गए। जब हम भी दिल्ली गए, पार्लियामेंट के सामने धरना वरना दिया, मगर अब फिर कहीं ना कहीं लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। मैंने सुना बटंडी में भी और कश्मीर में भी। तो हमारी एक बिल आई थी हमने कि जो जहां रहता है सरकारी जमीन पे, खासकर गरीब लोग हैं, गरीबों के स्कूल हैं, तो उसको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। इस बिल को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ओके किया था, पर इस बिल को भी डिस्कशन में नहीं लाया गया। इसके अलावा हमने बहुत अहम रेजोल्यूशन लाए थे। एक तो ये हमने लाया था कि इलीगल माइनिंग, के लिए हमने ये कहा था कि जो माइनिंग है उसको रेगुलराइज किया जाए। मगर मैंने सुना है कि अभी जिन्होंने ऑक्शन पे माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए थे, जिन्होंने तमाम जो उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स थी पूरी करने के बावजूद उनको क्लियरेंस नहीं मिल गई है, उनको बंद किया गया है। और जो माफिया है माइनिंग का, उसको चलाया जा रहा है, क्योंकि उससे हफ्ता लिया जा रहा है। अगर लीगल माइनिंग को चलने दिया जाए किसी कंट्रोल तरीके से तो आपको रॉयल्टी मिलती है, मगर जो लीगल माइनिंग को उसकी क्लियरेंस को बंद करके जो यहाँ के लोकल्स करना चाहते हैं और तरीके से करना चाहते हैं जिससे सरकार को रॉयल्टी मिल सकती है, उसको बंद करके इलीगल माइनिंग को पूरी इजाजत दी है, पूरी छूट है। मैं नाम नहीं लेना चाहती उन पॉलिटिशियंस का या उस लीडर का जिसके रिश्तेदार इसमें इन्वॉल्व है, जो इलीगल माइनिंग का इस वक्त हफ्ता वसूल करते हैं और उसको खुली छूट दी गई है। और वो ब्लैकमेल भी करते हैं कि भाई आप हमारा इतना दे दो तो हम आपको माइनिंग करने देंगे। तो मेरी वजीर आला साहब से गुजारिश है कि आप इस चीज को देख लीजिए कि इससे आपकी सरकार की भी बदनामी होती है, क्योंकि जब से आपने माइनिंग को बैन करने के नाम पे कि हमने माइनिंग बैन कर दी, आपने माइनिंग बैन नहीं की, आपने इलीगल माइनिंग को बैन नहीं किया। वो चल रही है और दिन दहाड़े चलती है और उससे बहुत सारा जो है मटेरियल निकाला जा रहा है और उससे आप ही के लोग और दूसरी जमातों के लोग उनसे पैसा जमा कर रहे हैं। इसको बंद कर लीजिए और जिनका ऑक्शन से जिन्होंने इसका टेंडर लिया हुआ है उनकी क्लियरेंस देके उनको माइनिंग की इजाजत दे दीजिए। और हमने एक रेजोल्यूशन ये भी लाया था कि वन टाइम माफी मिलनी चाहिए जो गरीब लोग हैं। बिजली फीस किसी के जो 2000 आने थे या 1500 महीने का था तो उनकी लाखों में ऐसी कुछ बिजली फीस है, कमर टूट गई है लोगों की। हालांकि सरकार ने कहा था हम फ्री बिजली 200 यूनिट देंगे, वो तो नहीं दी। मगर जो बिजली फीस है हमने रेजोल्यूशन लाया था, इसको वन टाइम माफी देना चाहिए, पर उसको भी नहीं उठाया। बाकी आप इसके अलावा कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। रामायण फ्लोर बस से लेकर रामबन फ्लोर बस से पहले एडवाइजरी जारी हुई थी। आपने खुद ही कहा कि ये स्ट्रेच NH-44 का रामबन वाली हल्का काफी सेंसिटिव है, बहुत कटिंग हुई है, फिर भी इतने लोग क्यों पाए गए? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है कि लोगों को फिर भी छोड़ दिया गया? नहीं, ये तो मेरे ख्याल में ये जब इसमें जो मौसम की जो वेदर का जो फोरकास्ट है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और लोगों को रोका जाना चाहिए कि आप इसको क्रॉस मत करो। क्योंकि अगर पहले लोगों को रोका गया होता और ये वेदर फोरकास्ट भी था कि 3-4 दिन बड़ा मौसम खराब रहेगा तो शायद लोग ना निकलते और लोगों की जाने भी नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ सरकार की इसमें गफलत है, इसमें उनकी इंडिफरेंस है कि उन्होंने लोगों को क्यों नहीं रोका इस रोड पे ट्रैवल करने से। और इसमें एक और बात, एक बात जो नेशनल हाईवे पे इस वक्त हुआ, मैं समझती हूँ उससे और ज्यादा जरूरी बन जाता है कि मुगल रोड का जो टनल है वो जल्द अज जल्द बनना चाहिए ताकि हमारे पास इस रोड पे इतना दबाव ना हो, दोनों रोड साथ साथ चलते रहें और लोगों को आसानी हो जाए। सॉरी, जाने का मामला सामने आया जिस हवाले से गुलशहरा पुलिस ने एक मामला दर्ज किया और किस तरह से आपके द्वारा इस पर ट्वीट किया गया था? वो लियाकत, प्रोफेसर लियाकत, मैंने ऑलरेडी उसके बारे में आपको जैसे खुद ही का मैंने बात की और मुझे खुशी है उसमें एक्शन हुआ, एक इंक्वायरी हुई। क्योंकि ये जो दूर दराज इलाके हैं इनमें जब इस किस्म के हादसे होते हैं, पिटाई होती तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब मैंने इसके ऊपर ट्वीट किया तो मुझे खुशी है कि आर्मी ने उसमें तुरंत एक्शन लिया और FIR भी दर्ज हुई। पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है, ये कुदरती आपदा उसी के तहत भी हो रही है क्या? ये तो बहुत बड़ी वजह है। देखिए ना, अभी आप उत्तराखंड में देखिए हर साल कुछ न कुछ होता है। क्यों? क्योंकि हमने जंगल, पहाड़,
हमको अगर टनल बनाना कहीं जरूरी है, जैसे आप सर्दियों गर्मियों में किसी रीजन को जोड़ना चाहते हैं, मैं समझती हूँ मुगल रोड टनल बनाना जरूरी है, गुरेज का टनल बनाना जरूरी है, कुपवारा का टनल बनाना जरूरी है, मगर जिस तरह यहाँ से किश्तवाड़ का, मगर एक यहाँ से कश्मीर तक सिर्फ इसलिए टनल बनाए जाए कि ताकि बहुत जल्दी हो जाए। पहाड़, जंगल, इतने हमारे छोटे छोटे चश्मे वो खत्म करके टनल निकाले गए, उसका ये नतीजा है कि ये स्ट्रेच बहुत ही ज्यादा जो है खतरनाक बन गया है लोगों के लिए। तो मुझे लगता है हमें एनवायरनमेंट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। एयर ने कहा कि फारूक साहब को पता था, उन्होंने ये भी कहा कि हम इसको हेल्प कर सकते थे। टारगेट किया, उन्होंने कहा कि पीडीपी महबूबा जी को आपका नाम दिया, उन्होंने कहा कि उसको रिमाइंड करना चाहिए कि गौरव साहब ने आपके बारे में, आपके वालिद साहब के बारे में क्या बोला था, क्या इसको। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारी दुनिया जानती है दुल्लत साहब अब्दुल्ला फैमिली के बहुत ही ज्यादा हमदर्द और दोस्त हैं, और आज जो उन्होंने बात कही कि फारूक साहब ने कहा कि मुझे बीजेपी वालों ने क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, इतनी फौज लगाने की क्या जरूरत थी कश्मीर में, अगर मुझसे मशवरा किया होता तो मैं असेंबली के जरिए 370 खत्म करने में उनकी मदद करता। ये दुल्लत साहब ने किसी बग़ज़ी यजीद नहीं कहा, फारूक साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहा, बल्कि हमदर्दी की वजह से कहा, क्योंकि वो चाहते हैं किसी तरीके से फारूक साहब और बीजेपी के रिश्ते हमवार हो जाएं, और बीजेपी, ये जो फारूक साहब हैं, ही शुड बी इन द गुड बुक्स ऑफ बीजेपी, ताकि आपस में ये मिलके चले। तो जो आप उमर साहब कहते हैं, मुफ्ती साहब, वो बड़ी छोटी छोटी बातें कही उन्होंने, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। 370 के लिए फारूक साहब का ये कहना है कि मैं बीजेपी की मदद करने के लिए तैयार था, वो भी असेंबली के जरिए, ये बहुत बड़ा मसला है। इस मसले पे फारूक साहब को, लोगों को सफाई देनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सफाई देनी चाहिए, क्योंकि ये उस बात की तरफ इशारा करते हैं कि 3 अगस्त को फारूक साहब और उमर साहब प्राइम मिनिस्टर के पास क्या कर रहे थे, वहां क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं बताया वहां क्या हुआ। या उससे पहले 2014 जिस वक्त पीडीपी और बीजेपी की बात चल रही थी आपस में, उस वक्त देवेंद्र रैना जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा एक बार नहीं 4 बार उमर साहब और वो दिल्ली गए बीजेपी लीडरशिप से मिलने के लिए, ये कहने के लिए कि आप पीडीपी के पीछे क्यों पड़े हो, हम बिला शर्त व शुरूत बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं कड़ी तो मिलती है। अगर वो कहते हैं कि सरकार तो आपने बनाई, तो वो कहते हैं कि आरएसएस बीजेपी को जम्मू कश्मीर में एक मौका देने के, तो पीडीपी सबसे बड़ा इल्जाम बीजेपी पे क्या है कि वो 370, हाँ, और पीडीपी वो जमात है जिसने बीजेपी के हाथ 3 साल बांध दिए जब हम सरकार में थे। क्या उन्होंने 370 पर हाथ लगाया?